Good evening students, welcome to my channel. This is the second lecture of logarithmic differentiation. In the last video, I explained the concept of logarithmic differentiation, when to take log before differentiation, and by taking log the function becomes simplified. Then we do normal differentiation. Okay. So today also I will explain some more questions on differentiation. There are many questions on this topic. Today I will take some important questions. You write question is, find dy by dx if y equal to log x to the power x. I have explained a similar question, last question, in the previous video. Using that logic you can do. I told function to the power function plus, let's say there is a minus, plus भी हो सकता है, and again after minus there is again function to the power function. If we have this type of situation, then we have to assume this first function as u, that u is log x to the power x, and this second part is v, x to the power log x. This is the process, students. Now your y will become u minus v, but the question is to find out dy by dx. So this will imply dy by dx equal to, means here we will differentiate both sides, will be du by dx minus dv by dx. This is from algebra of derivative. That means dy by dx will be equal to derivative of u du by dx minus derivative of v dv by dx. Let's say it is equation 1. Now our purpose is to find out du by dx and dv by dx. Those will be found separately, students. Here your u is log x to the power x, and v is x to the power log x. You think of this, how to find du by dx from here. So because we have function to the power function, we have to take log both sides. log क्या है? logarithm, राइट. तो शॉर्ट में हम log लिखते हैं. तो log लेने से क्या होगा? log u is equal to log x to the power x. Then after taking log, I told in the previous class, always on the right side we use property. According to property, this power will come front, so this becomes x log x. Then we differentiate with respect to x. Students, log du by derivative 1 by u du by dx. On the right side we will use product rule. एक फंक्शन है x और एक फंक्शन है log of log x. तो प्रोडक्ट रूल यूज होगा. फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, इसका डेरिवेटिव करने के लिए चेन रूल यूज होगा. इट इज 1 बाई log x इंटू 1 बाई x. फर्स्ट लॉग के लिए डेरिवेटिव 1 बाई log x आ गया, क्योंकि log ऑफ समथिंग है, सो 1 बाई समथिंग इंटू समथिंग का डेरिवेटिव, प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव. सेकेंड क्या है? log ऑफ log x इंटू फर्स्ट मतलब x का डेरिवेटिव 1. ये कंप्लीट हो गया राइट साइड डेरिवेटिव. यहाँ x x कैंसिल. सो फाइनली du by dx विल बी, ये 1 by u इधर आकर u बनेगा, u के जगह पर ये डाल दो. आई एम स्किपिंग वन स्टेप. log x to the power x इंटू, लेट अस यूज कर्ली ब्रैकेट. यहाँ पर है 1 by log x, बस यहाँ पर है log ऑफ log x. स्टूडेंट्स, मेक इट इक्वेशन 2. तो इन इक्वेशन 1 यू नीड dy by dx, तो इसका आंसर ये है.
ये हम लास्ट में डालेंगे यहाँ पर। वैसे v का भी डेरिवेटिव होगा, इसमें भी log लेना पड़ेगा। टेक log बोथ साइड्स, क्या होगा देखेंगे। log लेने से log v पुट इम्प्लाई साइन इन एवरी स्टेप, log x टू द पावर log x। यहाँ देखो स्टूडेंट, इसमें जब हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे ये पावर आगे आएगा, मतलब log x इंटू log x। इसको हम चाहे तो log x इंटू log x को log x का स्क्वायर भी लिख पाएंगे। सेम थिंग इज मल्टीप्लाई 2 टाइम। नाउ यहाँ पर डेरिवेटिव थोड़ा इजी होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट्स log v का डेरिवेटिव 1 by v dv by dx। जनरली इन द बोर्ड एग्जाम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज आस्क्ड। एक को u लेना पड़ेगा और एक को v लेना पड़ेगा, फिर सेपरेटली वी फाइंड dy by dx, देन वी सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1। इसका डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, पावर है तो पावर का डेरिवेटिव। देख रहे हो चेन रूल कितना इंपॉर्टेंट है। पावर डिफरेंशिएट हो गया, फिर बेस का डिफरेंशिएशन log x का 1 by x। फाइनली विल गेट dv by dx इक्वल टू, ये जो 1 by v है वो इधर आएगा, v क्या है x की पावर log x, इनटू में इतना आएगा, ये क्या है 2 log x by x। इसको मान लो इक्वेशन 3। अभी लिखना पड़ेगा पुट इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। मैं नहीं लिखूंगा, यू विल राइट पुट इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इन 1। यहाँ पर ये पुट होगा, यहाँ पर ये पुट होगा। दैट विल बी योर फाइनल आंसर स्टूडेंट, एंड यू राइट आंसर। Okay, so there are several questions of this type. You can practice at home from your book. Now, let us take some more questions. Question क्या है देखो स्टूडेंट। Next question, find dy by dx if it is given cos x की पावर y is equal to cos y की पावर x। ऐसे एक इक्वेशन दिया है, दोनों साइड एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नीचे x का फंक्शन है, ऊपर y है। मैंने इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव में बताया था, y कांस्टेंट नहीं होता है, y क्या होता है, एक अननोन फंक्शन ऑफ x होता है। सो दोनों की दोनों फंक्शन है, cos x x का फंक्शन है, y भी एक अननोन फंक्शन ऑफ x है। इस साइड में नीचे cos y है, जहाँ y एक फंक्शन ऑफ x होगा, पावर में x है। इसी से हमको dy by dx फाइंड करना है। तो आंसर में क्या करेंगे, ये तो लिखेंगे गिवन है। अभी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि पावर बेस दोनों के दोनों फंक्शन या फिर वेरिएबल है। तो ये पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे टेक लॉग बोथ साइड्स। ओके, लॉग cos x की पावर y इज इक्वल टू लॉग cos y की पावर x। फिर प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। अभी यहाँ पर क्या होगा, दोनों साइड प्रॉपर्टी यूज होगा। यहाँ पर पावर है, पावर आगे आएगा y log cos x। यहाँ पर पावर x है, x आगे आएगा x log cos y। प्रॉपर्टी पता है, log के आगे log के बाद जो पावर होगा वो पावर हमेशा आगे आएगा। तो प्रॉपर्टी तो यूज हो गया। अभी हम डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। This type of differentiation we have used in logarithmic differentiation। पहले लेफ्ट साइड के बारे में सोचो, प्रोडक्ट टूल यूज होगा। y एक फंक्शन है, log cos x एक फंक्शन है, तो पहला फंक्शन इनटू सेकंड का डेरिवेटिव, log cos x का डेरिवेटिव 1 by cos x इनटू माइनस sin x, प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब y का डेरिवेटिव dy by dx। समझ रहे हो? So this requires the logic of implicit function derivative। ये हो गया राइट, लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव इक्वल टू, अभी राइट साइड
एक्स एक फंक्शन है, log cos y एक फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव। बी केयरफुल, log cos y का होगा 1/cos y इंटू माइनस साइन y इंटू dy by dx। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट टू मल्टीप्लाई dy by dx बिकॉज दिस एक्सप्रेशन कंटेन्स y। सो जब हम y वाला एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे नॉर्मली चेन रूल से करेंगे, एट लास्ट y का भी डेरिवेटिव लेंगे प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, मतलब log cos y इंटू एक्स का तो डेरिवेटिव 1 होगा। ये हो गया तुम्हारा डेरिवेटिव स्टेप। बट हमें तो dy by dx चाहिए, तो हमको dy by dx कलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर एक dy by dx है, यहाँ पर एक dy by dx है। ये इधर आएगा, ये उधर जाएगा, तो जब ये इधर आएगा वहाँ से मैं एक स्टेप में कर रहा हूँ, dy by dx तो कॉमन जरूर आएगा। यहाँ क्या बचा है, log cos x, ये तो नेगेटिव में है, उधर इधर आएगा तो प्लस होगा। sin y बाई cos y को हम tan y लिख पाएंगे प्लस x tan y, समझ रहे हो, इज इक्वल टू राइट साइड में क्या है log cos y, ये टर्म उधर जाएगा, ये नेगेटिव में है, उधर जाएगा तो प्लस होगा। sin x बाई cos x tan x, इधर एक y है तो y tan x। बहुत सिंपल है। dy by dx इक्वल टू log cos y प्लस y tan x डिवाइडेड log cos x plus x tan y। This is your final answer, students. Understood? This is your final answer. Okay. Next question will take, students. Next question क्या है? तुम एक्चुअली क्या करो, अगर तुम लोग को समझ में आ रहा है ये क्या है, जब मैं क्वेश्चन लिखूंगा you stop the video, मतलब pause the video, you do yourself, then you can check my answer whatever I am doing. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है x to the power y is equal to y to the power x। this is similar to last question। find if ये given है, then find एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है ये, और थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है। तो आंसर में हम क्या करेंगे, गिवन है x to the power y is equal to y to the power x, हम लिखेंगे टेक log बोथ साइड्स। समझ में आ रहा है हम लोग log क्यों ले रहे हैं, log लेने से ही डेरिवेटिव होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। log x to the power y is equal to log y to the power x, फिर प्रॉपर्टी यूज होगा, ये पावर आ जाएगा y log x is equal to x log y। when you applied the property then you can start differentiate with respect to x। जब हम करेंगे यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल, यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, y इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड log x इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव क्या होगा dy by dx इक्वल राइट साइड में क्या होगा, देखो स्टूडेंट, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव log y का डेरिवेटिव 1/y dy by dx। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब भी y वाला टर्म को हम डेरिवेटिव करेंगे नॉर्मल चेन रूल से करेंगे, फिर y का डेरिवेटिव इंटू करेंगे प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, मतलब log y इंटू 1। ठीक, द टारगेट इज टू फाइंड आउट dy by dx। इसी स्टेप के बाद हमको dy by dx कलेक्ट करना होगा, तो इसको इधर भेजना होगा, ये जब इधर आएगा dy by dx कॉमन में आएगा, तो इधर क्या है log x माइनस एक्स बाई वाई इक्वल, ये वाला टर्म उधर जाएगा log y माइनस y बाई एक्स। नेक्स्ट स्टेप में तुम्हारा आंसर है स्टूडेंट, dy by dx इज इक्वल टू log y माइनस y बाई एक्स डिवाइडेड log x माइनस x बाई y। दिस इज योर आंसर स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लूँगा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। इफ y to the power x plus x to the power y plus x to the power x is equal to a to the power b, then find
dy by dx। इसका कॉन्सेप्ट मैंने अभी एक्सप्लेन किया हुआ, मतलब ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन। इस तरह के क्वेश्चंस का हम क्या करेंगे, जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बीच प्लस होगा या फिर माइनस होगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में अलग अलग था, इस तरफ एक एक्सपोनेंशियल इक्वल टू के इस तरफ एक एक्सपोनेंशियल, देन इट इज ऑब्वियस यू कैन टेक लॉग बोथ साइड। बट यहाँ पर हम लॉग लेंगे तो कुछ भी प्रॉपर्टी यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि अमॉन्ग द एक्सपोनेंशियल फॉर्म यू हैव प्लस है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमको यू भी डब्ल्यू के बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे हम आई हैव एक्सप्लेन टू क्वेश्चंस वेयर वी आर टेकिंग यू भी, बट यहाँ पर ये एक फंक्शन है यू लेना पड़ेगा, यहाँ पर एक फंक्शन है भी लेना पड़ेगा, यहाँ पर एक फंक्शन है डब्ल्यू लेना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। लेट यू इज इक्वल टू वाई टू द पावर एक्स लेंगे, कुछ एक वेरिएबल सोच लो, v इक्वल एक्स टू द पावर एक्स वाई को छोड़ के, w इक्वल एक्स टू द पावर एक्स। सो मैंने एज्यूम किया ये u है, ये v है, ये w है, ठीक है। a टू द पावर b के लिए कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है। नाउ वी हैव दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, u प्लस v प्लस w इक्वल टू a टू द पावर b। अभी क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, बट फाइनली हमें चाहिए dy by dx। देखेंगे ये कैसा आएगा। इसके बाद हम लिख पाएंगे dy by dx, मतलब वी आर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस dv by dx प्लस dw by dx। दिस क्वेश्चन वाज प्रीवियसली आस्क्ड इन CHS एग्जाम। ये जीरो कैसे हुआ स्टूडेंट, a टू द पावर b का डेरिवेटिव जीरो ही होगा, क्योंकि a टू द पावर b एक कांस्टेंट है, ठीक है। देखो स्टूडेंट अभी कैसे करेंगे, तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 से डिनोट करेंगे, इक्वेशन 1 में क्या क्या डेरिवेटिव चाहिए, dy by dx, dv by dx, dw by dx, उसको हम सेपरेटली फाइंड करेंगे। देखो कैसे फाइंड करेंगे, हियर u इक्वल टू u कौन है, y टू द पावर x। तो dy by dx फाइंड करने के लिए इसको डेरिवेटिव मींस डिफरेंशिएट करना होगा, ये तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं होगा, अभी log लेना पड़ेगा। टेक log बोथ साइड्स, log लेंगे तो क्या बनेगा, log u इक्वल टू x log y। आई एम राइटिंग डायरेक्टली, ये समझ में आ रहा है। पहले log of इतना लिखना होगा, पावर आ गया तो x log y, बिकॉज वी हैव डन सो मेनी क्वेश्चंस। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे अभी। तो स्टूडेंट log u का डेरिवेटिव हम लिखेंगे 1 by u du by dx। दिस इज सिंपल, log का डेरिवेटिव 1 by u, फिर u का डेरिवेटिव du by dx अकॉर्डिंग टू चेन। अभी इसका क्या होगा, प्रोडक्ट फर्स्ट फंक्शन x इनटू सेकंड का डेरिवेटिव log y, तो स्टूडेंट 1 by y dy by dx होगा, ठीक, प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, राइट, समझ रहे हो। यहाँ से du by dx क्या होगा स्टूडेंट्स, ये 1 by u उधर जाएगा तो u होगा, u क्या है, y टू द पावर x। सो y टू द पावर x इनटू, इसको ठीक से लिखो x by y dy by dx प्लस वहाँ पर है log y, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन, इसको इक्वेशन 2 मान लो। यहाँ पर चाहिए ये वैल्यू हम पुट करेंगे, जब हम ये दोनों निकालेंगे बाद में हम पुट करेंगे। अभी dv by dx के बारे में सोचेंगे। अगेन v क्या है, व्हाट इज योर v, x टू द पावर y। टू गेट dv by dx इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं होगा, log लेना पड़ेगा। सो टेक log बोथ साइड्स, log लेंगे तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज log v इक्वल टू y log x। मैं एक स्टेप जंप करके लिख रहा हूँ, log पहले लेंगे बाद में प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सिंस वी हैव ऑलरेडी डन सो मेनी क्वेश्चंस, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ये बनेगा पावर आ गया तो y log x, फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। अगेन log v का डेरिवेटिव 1 by v dv by dx इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या होगा, प्रोडक्ट टू फर्स्ट फंक्शन y इनटू log x का डेरिवेटिव 1 by x प्लस सेकंड फंक्शन log x इनटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव लिखेंगे स्टूडेंट्स dy by dx, राइट।
तो dv by dx क्या होगा, 1 by v इधर आकर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, v क्या है, x to the power y, तो x to the power y into y by x plus log x dy by dx. This is student equation 3. This is also an important expression. ये भी हम इक्वेशन 1 में यूज करेंगे. फाइनली हमें dw by dx चाहिए. ये 6 मार्क में आ सकता है, CBSE में 4 मार्क में आता है, CHSE में 6 मार्क में आ सकता है. w क्या है, w है x to the power x. मैंने तो बोला था लास्ट क्लास में x to the power x का डेरिवेटिव इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला की तरह याद रखो, नहीं तो log लेकर तुम कर सकते हो. लेट मी अप्लाई log अगेन. इसको डिफरेंशिएट करने के log लेना पड़ेगा. टेक log बोथ साइड्स. लेंथी है बट इजी है. तो ये क्या बनेगा, log w इज इक्वल टू x log x. ठीक, फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे. गेटिंग. ये क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूँ, ये इक्वेशन तो यूज होगा. देखो इसके बाद क्या होगा, डिफरेंशिएट अभी करेंगे. log w का डेरिवेटिव 1 by w dw by dx. ठीक है, अभी इस तरफ आएंगे. प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, x इनटू log x का डेरिवेटिव 1 by x प्लस सेकंड फंक्शन log x इनटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब x का डेरिवेटिव 1. यहाँ तो x कैंसिल हो रहा है, तो dw by dx क्या बनेगा, w into 1 plus log x. w क्या है, x to the power x. So your dw by dx will be x to the power x into 1 plus log x. इसको मान लो इक्वेशन 4. तो हमारा काम खत्म हो गया. ये भी फाइंड कर लिए, ये भी फाइंड कर लिए, ये भी फाइंड कर लिए. अभी जब हम इसमें ये सब वैल्यूज पुट करेंगे, वहां से dy by dx आएगा स्टूडेंट. अभी क्या लिखेंगे, पुटिंग 2 मतलब इक्वेशन 2, 3, 4 इन इक्वेशन 1. ठीक है, ये इक्वेशन याद है, इसमें हम पुट करेंगे. इक्वल टू क्या है, 0. सबका वैल्यू तो है, यहाँ पर इक्वेशन 2 है, यहाँ पर इक्वेशन 3 है, यहाँ पर इक्वेशन 4 है. इसको भी मैं मिटा रहा हूँ. इक्वल टू 0 याद रखो. तो जब हम पुट करेंगे बड़ा सा एक्सप्रेशन आएगा. देखो 2 यहाँ पर है, इसको मैं ओपन करके लिख रहा हूँ. y to the power x into x by y dy by dx प्लस ये इसके साथ भी इंटू होगा, बी केयरफुल, y to the power x log y प्लस इक्वेशन 3 ये है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x to the power y into y by x प्लस ये बनेगा x to the power y log x dy by dx प्लस इक्वेशन 4 ये है, इसको एज इट इज रखो क्योंकि इसमें तो dy by dx नहीं है. x to the power x into 1 plus log x equal to 0. अभी सर्च करो कहाँ पर dy by dx, यहाँ पर है, यहाँ पर है. इन दोनों को इस तरफ रख दो, बाकी सबको उधर ले जाओ. जब मैं इन दोनों को इधर रखूंगा, वहां से स्टूडेंट dy by dx कॉमन आएगा. जब कॉमन आएगा यहाँ पर ये बचेगा. इसको केयरफुली देखो, ऊपर है y पर x, नीचे है y. तो नीचे जो y है मतलब उसका पावर 1 है, वो ऊपर जाकर माइनस होगा, y to the power x minus 1 into x. समझ रहे हो, यहाँ पर x पर y log x है इक्वल टू 1 2 3. ये 3 टर्म उधर जाएगा, ये एज इट इज रखो, माइनस के साथ रखो, माइनस ऑफ y to the power x log y. ये देखो स्टूडेंट, मैंने माइनस 1 रख दिया, बाकी सबको प्लस में लिखूंगा. ये दोनों अगर सॉल्व करेंगे प्लस x to the power y minus 1 into y होगा. ये प्लस नहीं स्टूडेंट, एक्चुअली माइनस है. जब हम इसको इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस बन जाएगा. फिर ये टर्म है प्लस x to the power x into 1 plus log x. क्योंकि सबके सब प्लस है, सब उधर जाएंगे, प्लस में रहेंगे, बाहर माइनस रखेंगे, तो सब कुछ नेगेटिव में ही होगा. अभी तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा स्टूडेंट, dy by dx is equal to minus y to the power x log y plus x to the power y minus 1 into y plus x to the power x into 1 plus log x. To do this type of question, you should have patience. This is very easy. Only you require patience. Y to the power x minus 1 into x plus x to the power y into log x.
दिस इज योर फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। बड़ा सा क्वेश्चन है ये, एक्चुअली 6 मार्क में ही आना चाहिए, बट सीबीएसई में 4 मार्क में आता है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद और एक क्लास होगा बेस्ड ऑन लॉगरिथमिक डिफरेंसेस, देन विल मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, लिखो। ये सीएचएससी में एक बार आया था, सीबीएसई में भी एक बार आया था शायद। इफ x to the power y equal to y to the power x plus tan इनवर्स, इसमें मिक्स का कॉन्सेप्ट है, cos x by 1 plus sin x, then find dy by dx। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। देखो इसमें भी हमें u भी कंसीडर करना पड़ेगा। क्यों, चलिए उसको समझो। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, नीचे फंक्शन पावर में भी फंक्शन, ये भी एक्सपोनेंशियल, नीचे फंक्शन पावर में फंक्शन। ये तो एक सिंपल इनवर्स वाला फंक्शन है। अगर मैं डायरेक्टली लॉग ले जाऊंगा शुरू से तो गलती क्या होगा, इसमें तो प्रॉपर्टी लग जाएगा, y आगे आ जाएगा। जब इस तरफ हम लॉग लेंगे, लॉग ऑफ m प्लस n दिखाई देगा, जिसका कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं है। इसीलिए मैं क्या बता रहा हूँ, इसको u मान लो, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसको v मान लो, इस पूरे फंक्शन को w मान लो। सो वी हैव, पहले लिखना होगा लेट u इक्वल टू दिस, v इक्वल टू दिस, w इक्वल टू दिस। सो देन लिखना होगा वी हैव u इज इक्वल टू v प्लस w। स्टूडेंट देखो बीच में इक्वल टू साइन है, ये आएगा। जब हम इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे, इसको w मानेंगे, तो वी हैव दिस रिलेशन u इक्वल टू v प्लस w। देन du by dx क्या बनेगा, du by dx बनेगा dv by dx प्लस dw by dx। सो दिस इज द मेन इक्वेशन जो कि फ्यूचर में यूज होगा, आगे यूज होगा, इक्वेशन 1। अब इंडिविजुअली सोचेंगे du by dx कैसे निकलेगा, dv by dx कैसे निकलेगा, dw by dx कैसे निकलेगा। हियर u क्या है, x to the power y। जस्ट नाउ वी हैव डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसको डिफरेंशिएट इजीली कर पाएंगे। मैं फिर से कर रहा हूं, टेक log both sides, टेक log both sides। तो ये क्या बनेगा, log u इक्वल टू y log x। ये u है स्टूडेंट, y पावर आगे आएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट जब करेंगे, log a का डेरिवेटिव 1 by u du by dx, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा y into 1 by x। मैं थोड़ा स्पीडली कर रहा हूँ क्योंकि आई हैव डन दिस क्वेश्चन एग्जैक्टली। अप्लाई प्रोडक्ट रूल हियर, देन du by dx क्या आएगा, 1 by u, u इधर आएगा, u क्या है, x to the power y, x to the power y into, ये लिखेंगे y by x प्लस log x dy by dx। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ये जो आया है। फिर v का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, v क्या है, y to the power x। तो टेक log both sides, टेक log both sides। तो log v होगा x log y, then differentiate with respect to x। In your notebook you write properly, नीचे नीचे लिख के जाओ। तो डिफरेंशिएट करेंगे, log v का डेरिवेटिव 1 by v dv by dx इक्वल टू, इसमें अगेन प्रोडक्ट लगेगा x into 1 by y dv by dx प्लस log y into 1। यहाँ तक ठीक है। चेन रूल, इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव, सब कुछ पता होना चाहिए। फिर यहाँ से तुम्हारा, यहाँ इम्प्लाई साइन दे दो, यहाँ इम्प्लाइज, यहाँ इम्प्लाइज। तो dv by dx स्टूडेंट क्या होगा, 1 by v उधर जाएगा, v क्या है, y to the power x into x by y dv by dx प्लस log y। इसको मान लो इक्वेशन 3। ठीक है, इन इक्वेशन 1 विल पुट एवरीथिंग जो आएगा। फिर dw by dx है, w क्या है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ w है tan इनवर्स
cos x by, इस तरह का क्वेश्चन मैंने इनवर्स फंक्शन में एक्सप्लेन किया हुआ है। आई हैव एक्सप्लेन्ड इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डेरिवेटिव। इसमें सिंपली इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को फॉर्मूला यूज करके सिंप्लीफाई करेंगे तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा। थोड़ा लेंथी पड़ेगा, ये देखो कैसे होगा। w इक्वल टू tan इनवर्स, मैं डेरिवेटिव नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। cos x में डालेंगे cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2, 1 प्लस sin x में लिखेंगे cos x by 2 प्लस sin x by 2 का स्क्वायर। ठीक, ये सब फॉर्मूला आई हैव यूज्ड इन द प्रीवियस टॉपिक, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। w इक्वल टू tan इनवर्स, देखो यहाँ पर क्या बनेगा, ऊपर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे है a प्लस बी का स्क्वायर, तो आई थिंक a प्लस बी कैंसिल होगा, तो ऊपर बचेगा cos x by 2 माइनस sin x by 2 डिवाइडेड cos x by 2 प्लस sin x by 2। याद आ रहा है, एग्जैक्ट वही यही क्वेश्चन हमने किए थे। फिर ऊपर नीचे cos से डिवाइड करेंगे तो w बनेगा tan इनवर्स 1 माइनस tan x by 2 बाई 1 प्लस tan x by 2। यहाँ तक ठीक है। फिर इसका भी एक फॉर्मूला है tan पाई बाई 4 माइनस x by 2। ठीक है, तो w वाला थोड़ा टाइम ले रहा है, u भी तो इजीली हो गया डेरिवेटिव। फिर ये तो सिंपल हो गया, f इनवर्स h थीटा, ये दोनों कैंसिल होंगे तो w क्या आएगा पाई बाई 4 माइनस x by 2। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो तुम्हारा dw by dx निकलेगा पाई बाई 4 का तो डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस x by 2 का माइनस हाफ। अंडरस्टूड, ये है इक्वेशन 4। तुम्हारा काम खत्म हो गया। अभी क्या करेंगे, 2 3 4 को 1 में पुट करेंगे। अभी क्या लिखेंगे, पुटिंग, पुटिंग मैं इसको मिटा रहा हूँ, पुटिंग हमें फाइनली dy by dx चाहिए। पुटिंग 2 3 4 in 1 we get, देखो इक्वेशन 1 में क्या लिखा है, dy by dx लेफ्ट साइड है तो उसके जगह पर ये डालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो x टू द पावर y इनटू दिस। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे x है ऊपर x पर y है, तो ये बनेगा स्टूडेंट x की पावर y माइनस 1, समझ रहे हो, इनटू y प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x की पावर y log x dy by dx। ये तो हो गया लेफ्ट साइड dy by dx इक्वल टू dy by dx क्या है, ये है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई जब करेंगे y टू द पावर x माइनस 1, देखो नीचे y है ऊपर y पर x है, तो ये दो कंबाइन होकर ये बनेगा इनटू x dy by dx प्लस ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा y पर x log y प्लस ये हो गया इक्वेशन 3 पुट ये हम यहाँ पर प्लस dw by dx, तो इक्वेशन 4 में उसका आंसर माइनस हाफ इक्वल टू माइनस हाफ। बहुत सिंपल है क्वेश्चंस, मतलब आंसर्स आर वेरी वेरी लेंथी बट डिफिकल्ट नहीं है, कूल माइंड में करोगे तो हो जाएगा। फिर अभी क्या करेंगे, हमें तो dy by dx चाहिए, हम dy by dx को एक तरफ रखेंगे, यहाँ पर रखें, यहाँ पर रखें, इसको यहाँ पर लाना पड़ेगा। जब ये इधर आएगा इसके साथ कंबाइन होगा, dy by dx कॉमन में आएगा, फिर बचेगा क्या, x पर y log x माइनस x by की पावर x माइनस 1 इक्वल टू उस तरफ क्या बचेगा, ये दोनों तो बचेंगे, ये एक टर्म उधर जाएगा, तो y पर x log y माइनस, मैं पहले इसको लिख रहा हूँ x पर y माइनस 1 इंटू वाई, फिर माइनस हाफ लिख है। आ गया तुम्हारा आंसर। तो dy by dx का आंसर क्या होना चाहिए, ये अभी डिवाइड होगा y पर x log y माइनस x पर y माइनस 1 इंटू वाई माइनस हाफ डिवाइडेड x पर y log x माइनस x इंटू वाई की पावर x माइनस 1। For your board exam, you should practice this type of question for long question. Okay, I will explain one more question that will complete today's class. आज का क्लास में जो मैंने प्रॉब्लम बताया सबके सब इम्पोर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स लिखो, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा इजी है। इफ x की पावर m y की पावर n इज इक्वल टू x प्लस y की पावर m प्लस n, देन प्रूव दैट dy by dx इक्वल टू, प्रूव दैट पूछ रहा है, इक्वल टू y by x। क्वेश्चन फाइंड dy by dx भी हो सकता है। इस क्वेश्चन में एक मैं बात बोलना चाहूँगा, x की पावर में m है, m तो एक कांस्टेंट डेफिनेटली, y की पावर n है वो भी एक कांस्टेंट, x प्लस y की पावर n प्लस n वो भी एक कांस्टेंट। स्टिल इस क्वेश्चन को करने के लिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, बट यू ट्राई एट होम विदाउट टेकिंग लॉग डिफरेंशिएट, मतलब नॉर्मल चेन रूल से डिफरेंशिएट करो, जो इम्प्लिसिट में हमने पढ़े थे उस तरह करो। थोड़ा टाइम लगेगा बट आंसर आएगा, बहुत सारे मैनिपुलेशन करना होगा, बट अगर लॉग ले जाएंगे इम्प्रूव फटाफट हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में इसको याद रखना होगा, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। पहले तो ये लिखेंगे, फिर टेक लॉग बोथ साइड्स लिखेंगे, फिर लॉग लेंगे, लेट मी राइट इन डिटेल लॉग x की पावर n इनटू y की पावर n इक्वल टू log x प्लस y की पावर m प्लस n। पहले इसके बारे में सोचो, इसमें कैसे प्रॉपर्टी यूज होगा, क्योंकि log के आगे मतलब log के बाद प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स आते हैं, तो पहले ये सम में कन्वर्ट होगा, मतलब log x टू द पावर n प्लस log y टू द पावर n। तो तुम्हें प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम आना चाहिए, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। यहाँ पर log के सामने x प्लस y की पावर m प्लस n, इसमें पावर आगे आ जाएगा m प्लस n log x प्लस n, ठीक। फिर इसमें अगेन प्रॉपर्टी होगा, m आ जाएगा m log x प्लस n आ जाएगा n log y इक्वल टू m प्लस n log x प्लस। इसके आगे और कुछ भी प्रॉपर्टी यूज नहीं होगा। अभी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट with respect to x। अभी डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या होगा देखो स्टूडेंट, बहुत इजी। m कांस्टेंट log x का डेरिवेटिव 1 by x, n कांस्टेंट log y का डेरिवेटिव 1 by y df dx। डेरिवेटिव थोड़ा इजी हो रहा है ना, अगर आप बिना log के करेंगे तो प्रोडक्ट लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें देखो n प्लस n कांस्टेंट, बी केयरफुल स्टूडेंट, log x प्लस y का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 1 by x प्लस y, log के लिए 1 by x प्लस y, फिर x प्लस y का डेरिवेटिव x का 1 y का dy by dx। अंडरस्टूड? दिस इज कैन बी रिटन m by x प्लस n by y dy by dx इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो m प्लस n by x प्लस y प्लस m प्लस n by, ये और कुछ नहीं, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है, बाकी सब काम हो गया। ऊपर सब काम हो गया है, खाली आपको सिंप्लीफाई करके वो प्रूफ करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको उधर ले रहा हूँ, इसको इधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ। जब ये इधर आएगा dx तो ऑब्वियसली कॉमन आएगा, यहाँ पर पहले बच रहा है n by y माइनस वो होगा m प्लस n by x प्लस y इक्वल टू, राइट साइड में तो ये है m प्लस n by x प्लस y, ये वाला टर्म माइनस होगा माइनस m by x, ठीक है। अभी कुछ नहीं, इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो बाय टेकिंग एलसीएम। मैं यहाँ लिख रहा हूँ dy by dx इनटू, स्टूडेंट्स दे विल नो हाउ टू टेक एलसीएम। y और x प्लस y का एलसीएम क्या होगा, y इनटू x प्लस y होगा, फिर यहाँ पर y है तो x प्लस y इधर इनटू होगा, मतलब nx प्लस ny होगा, फिर ये y इधर इनटू होगा, बाहर एक माइनस है तो माइनस my माइनस ny होगा, माइनस my माइनस ny होगा। ये तो लेफ्ट साइड होगा, राइट साइड भी सिमिलरली होगा, एलसीएम होगा x प्लस y इनटू x, x प्लस y इनटू x, x इधर इनटू होगा mx प्लस nx माइनस m के साथ ये इनटू होगा, माइनस है तो माइनस mx माइनस m। बी केयरफुल अबाउट साइन, ये तो स्कूल लेवल सिंप्लीफिकेशन है। केयरफुल देखो, ये नीचे x प्लस है, यहाँ पर भी नीचे x प्लस है, वो कैंसिल होगा। ऊपर देखो
यहाँ ny है, यहाँ ny है, प्लस है माइनस से कैंसिल हो, यहाँ mx है, यहाँ mx है, ठीक है। और ऊपर तो ये दोनों तो डिसिमिलर, ये कैंसिल नहीं होगा, ये दोनों डिसिमिलर है, कैंसिल नहीं होगा, मतलब dy/dx इनटू क्या आया, nx माइनस my डिवाइडेड y इक्वल टू nx माइनस ny डिवाइडेड x। इफ यू सी केयरफुली ये दोनों फैक्टर भी कैंसिल हो रहा है क्योंकि दोनों के दोनों सेम है। सो dy/dx इज योर y/x। हेंस ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। एक क्वेश्चन में तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूँ, एग्जैक्टली बेस्ड ऑन दिस, अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया उसके बेसिस पर तुम कर दोगे। ये सीरीज इस बोर्ड में आया है, और भी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो बुक है तुम्हारे पास। इफ x की पावर m इंटू y की पावर n इक्वल टू x बाई वाई की पावर m प्लस n, देन फाइंड dy/dx। एग्जैक्टली इसी तरह से होगा, बट यू शुड अप्लाई द प्रॉपर्टी प्रॉपरली, ठीक से प्रॉपर्टी अप्लाई करो, लॉग लेने के बाद हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। Again I am saying that you daily do practice 2 hours to get good score in board exam, otherwise you cannot score good mark. Every day you should do mathematics at least 2 hours, minimum 2 hours करना होगा, then only you can get success. Okay, thank you for watching my video. If you like whatever I am teaching in this channel, and if you feel it is helpful, then share and subscribe. Tell your friends to subscribe, also tell them to like the video. Okay, thank you for watching my video.